acceleration, force, momentum, impulse, surface tension, many different physical quantities are there. We divide all of those physical quantities in mainly two parts. One, those quantities which only require magnitude, and with the help of magnitude only we are able to explain it completely. For example, when we say 50 kg of when we say that 50 kg of mass, it is very clear that what is that amount. अब मैं बोलता हूँ कि मैग्नेट इज 70 kg, then you are very sure कि किस तरीके से होगा. ठीक है, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं कि नॉर्थ पोल पर है या साउथ पोल पर है. Only 70 kg is sufficient. That means magnitude of mass is sufficient to explain, and that's our mass is the scalar quantity. So scalar quantities are those which are described clearly and explicitly if we only describe its magnitude. Speed, when we say that speed of car is 120 km/h, in which direction does it rise? Okay, but when we say that I am going from Sindhi to Jabalpur, okay, with the speed of, तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन भी शो कर दिया है. that speed with direction is called velocity. So velocity is a vector quantity, it has a definite direction. When we say that wind is blowing, the question arises in which direction? Southern direction, western direction, north, south, northwest, whatever direction. Clear? In that case, velocity of speed, velocity of wind is a vector quantity. But when we say that speed of wind is 120 km/h or 70 km/h, then it is sufficient to explain that in that case magnitude of that particular speed to wind is 70 km/h. So wind speed and wind velocity are two different quantities here. Velocity has a definite direction, so it is a vector quantity. But when we say speed, it has only its magnitude, so it is a scalar quantity. So mainly there are two quantities in physics. Scalar quantities, those which only require magnitude. With the help of magnitude only we are able to explain it. Mass, volume, they are all scalar quantities. But there are some other quantities. When we say that a force of 4 Newton is applied, then its effect is there. That force will either displace the object from one place to another, or it will start to rotate the object either in clockwise direction or anti-clockwise direction. In that case, it has a definite direction. So without direction, you cannot explain it completely. And that's why this particular force is a vector quantity. Force is a vector quantity. Okay? So there are two types of quantities in physics: scalar, which only require magnitude and they are sufficient to explain it completely, and vector, which not only requires magnitude but it also requires direction to be told. Then only we are able to explain it. Examples में लिखा है force, acceleration, displacement, momentum, torque, many other quantities are there which are vector quantities. ठीक है, ये तो आपको फिजिक्स के हिसाब से डेफिनेशन होगी. ठीक है, बट वेक्टर क्वांटिटी जब होगी तो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बिकॉज वी आर सेइंग दैट वेक्टर हैज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डेफिनेट डायरेक्शन. एंड दैट्स व्हाई वेक्टर, जब भी आप बोलते हैं वेक्टर नॉट डायरेक्शन, वी आर वेरी श्योर वेयर दैट नॉट डायरेक्शन इज. इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर बोर्ड, वी मस्ट assume a zero origin and axis x and y, it is in a plane, and with the help of that xy plane we can show position of different points on this particular board. Okay? If we are saying that the person is sitting on 4th row in front of me, okay, then 4th row पे आपको पता होना चाहिए कि वो x डायरेक्शन, 4th row तो पता है, but in that 4th row which is the exact position of that particular object, so you have to tell it with the help of a zero origin, and you have to draw axis x and y. Only then we are able to show its position. That is what we have done here. In this diagram, x axis and y axis सभी को मालूम होगा x axis क्या होता है, horizontal axis, and y axis is what is generally vertical axis. If there is a point P here, then to express its position, we join it from origin O with the help of a straight line. Okay? Then this OP straight line, if we draw an arrow in it starting from origin up to the point P, then it is called OP vector. Okay? And this is actually position vector of point A. It shows position of point A with point P with respect to O. That's why we call it position vector. If there is another point Q here and we join it to O and draw a straight line and then indicate an arrow, then OQ vector will be position vector of point. So if position of any point is expressed
with respect to origin, that is called position vector. But if we express a vector, a line joining any other two points other than origin, like P vector, that is called displacement vector. That is point P to Q. We have displaced any object or we apply any force, whatever we are applying to zero quantity, which is vector 1, from point P to Q, which is other than O. So we call it displacement vector P. So displacement vector is actually a vector between two points which are other than origin. And position vector is actually a vector which shows position of that point with respect to origin. ठीक है, तो सिंपल सी उनकी डेफिनेशन है. ठीक है, पर इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड ट्रायंगल थ्योरम, अ लॉ ऑफ ट्रायंगल. आपको पता है कि जब स्केलर क्वांटिटी होती है तो 2 + 2 4 होता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट यहाँ पर वेक्टर में 2 + 2 4 नहीं होता. फॉर एग्जांपल, इफ टू फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन, then it get added. But if they start to apply opposite direction, then we know that there is difference of those two objects, difference of those two forces which is applied on it. दोनों एक सा फोर्स अप्लाई करें अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होगा, दैट मीन्स फोर्स बिकम्स जीरो. यदि किसी एंगल पर करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपने खींचा यहाँ से इस तरीके से और दूसरे ने इधर से खींचा, तो यू स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो सीधी सी बात है उस केस में जो उनका सम आता है वेक्टर सम, it is not exactly 2 + 2 = 4, and that is why we want to find out how we'll find out sum of two vectors, how we'll find out difference of two vectors. ठीक है, तो sum of two vectors, difference of two vectors etc. find out करने के लिए we must know law of triangle. Law of triangle says that if we are able to express three vectors a, b and c with the help of three sides of a triangle, then their vector sum, that is a plus b plus c, is always equal to 0 if they are in same direction. Direction is very important. ये इस point से इस point तक है, फिर continuously move कर रहे हैं same direction, so their vector sum will be 0. If three or more than three vectors are indicated by a polygon, इसमें polygon law भी आता है, law of polygon. तीन ही vector का समय जो हमेशा जरूरी नहीं कि we have applied only three vectors, there may be more than three vectors. In that case, how will find out their sum? In that case, we use polygon. ठीक है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन. अभी लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? लॉ ऑफ ट्रायंगल सेज दैट इफ देयर आर थ्री वेक्टर्स a, b and c, ठीक है, एंड दे आर इंडिकेटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन देयर वेक्टर सम इज ऑलवेज 0. यहाँ वेक्टर सम जब बोलते हैं तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है. जैसे मैं इसी को साइड वाले एक और डायग्राम में शो किया हुआ है, यहाँ x y ये तो सेम डायरेक्शन दिख रहा है, बट z इज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो when you take vector sum, will take x plus y but plus minus z. ठीक है, not plus z, will take plus minus z in opposite direction. ठीक है, so their sum is x plus y equals to क्या हो जाएगा z. इसका क्या मीनिंग हुआ? यहाँ आपको एक रूल मिला that we can find out sum of two vectors using this triangle. z is actually sum of x and y. z is actually sum of x and y. ठीक है, तो इस तरीके से हम सम फाइंड आउट करेंगे. एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल और लिया है, इसमें दो वेक्टर का सम है. आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया दैट दीज आर टू वेक्टर्स a एंड b, ठीक है, एंड फाइंड सम ऑफ देम. तो आप कैसे करेंगे? यूज लॉ ऑफ ट्रायंगल. फॉर दैट पर्पस विल ड्रॉ a, दिस लॉ ड्रॉ कर लिया एक्जेक्टली पैरेलल टू इट एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. ड्रॉ समझ में आया? आपको a को ड्रॉ करना है exactly in same magnitude, means उसकी इतनी लाइन से उतनी लाइन लेंगे और exactly parallel. Then from this tip we'll draw a vector b which is parallel to b and of same line. ठीक है, once you get this a and b, then there are two other points, open points. We join them. Once you join them, that indicate arrow in opposite direction. ठीक, इस डायरेक्शन ये भी दिया है, उसके opposite direction है. इसलिए कि अभी अपन ने देखा ये अपोजिट डायरेक्शन होता था, तो दैट इंडिकेट्स सम ऑफ द टू वेक्टर्स. और ये रूल बना लिया आपने. इन दैट केस a plus b minus r is equal to 0, और we can say that r equals to a plus b. तो ये तीसरा डायरेक्टिव जो वेक्टर है उसकी आप लेंथ मेजर कर लेंगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको सम का. ठीक है, और उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, यू विल नो इट्स डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज द मेथड बाय व्हिच वी फाइंड एडिशन ऑफ अ सम ऑफ टू वेक्टर्स.
3 वेक्टर का भी निकाल सकते हैं, 4 का। ये तो सब बताया मैंने। हाउ टू फाइंड डिफरेंस, उस पर ध्यान दें। डिफरेंस होता क्या है? व्हेन वी से दैट सबट्रैक्ट 24 माइनस 16, वी से दैट इज दैट आया कैसे है कि इट इज 24 प्लस माइनस 16। ठीक है, यू कैन ऐड 24 एंड माइनस 16 टू गेट दैट। ठीक है, और यही हम यूज करेंगे यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करने। ठीक, अब मेरे को जैसे a माइनस बी फाइंड आउट करना है, इसके फोटोग्राफ एक मिनट और रुकेंगे। माइनस में तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एट फर्स्ट मेरे को क्या निकालना है? a माइनस बी। तो पहले a वेक्टर ड्रॉ करूंगा, एक्जेक्टली ऑपोजिट में क्या होगा, ठीक। और b वेक्टर इधर है तो आपको पता होना चाहिए माइनस बी वेक्टर इज दिस मच, एक्जेक्टली पैरेलल और इन अपोजिट डायरेक्शन। ये शो करते हैं तो माइनस यहाँ से माइनस दिस इज a एंड दिस इज माइनस। अब जो ओपन एंड है इसको इससे ज्वाइन कर, ठीक है, ये दोनों हो गए a एंड b, a एंड माइनस। यूनिट तीसरे वेक्टर को सपोज r। अब रूट के हिसाब से क्या होगा? a प्लस माइनस b प्लस माइनस r क्योंकि इधर ऐसा लेना चाहिए था उसे, तो अपोजिट डायरेक्शन ऊपर ले दे दिया इसको इधर, तो क्या हो जाता? ठीक है, अभी नीचे है तो उसको आपने r से लिखा, तो a प्लस माइनस b प्लस माइनस r, क्योंकि अपन जब डायरेक्शन लेते हैं सेम लेते हैं, वेक्टर सम जब लेते हैं तो एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो a प्लस माइनस b इक्वल्स टू r। और सिंप्लीफाई कर देंगे तो a माइनस b इक्वल्स टू r। दैट मींस दिस r वेक्टर is indicating difference of A। इसी डायग्राम में मैं इसको और आगे सॉल्व कर सकता था, मैंने थोड़ा सा नहीं छोड़ा। यहीं पर मैं क्या करता, बी वेक्टर ऊपर बनाया हुआ है, मैं ब्लू कलर से बनाया था, ये इधर बी वेक्टर बनाया था अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। ठीक, ऊपर की तरफ बी है, नीचे एक्जेक्टली अपोजिट डायरेक्शन माइनस बी है, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। ये किसको शो करेगा? ये बराबर है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है, दैट मींस a माइनस b इज एक्चुअली a प्लस माइनस b। ठीक है, मैंने b का अपोजिट वेक्टर लेंगे। अपोजिट वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is equal to the given vector but direction is exactly opposite, we call them opposite vectors। Similar vectors means their directions are same as well as magnitudes are same। Parallel vector means they are parallel to each other but their magnitudes may be different। ठीक है, जैसे आप बोलते हो a और दूसरा वेक्टर है 3a, they are parallel vectors, they are not similar vectors or same vectors। ठीक, बट यदि एक वेक्टर आपने लिया a और ये अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया आपने b, तो सर्टेनली a इक्वल्स टू क्योंकि एक्जेक्टली पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये सिमिलर वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स के सब आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर्स मींस एंगल बिटवीन देम विल बी 90। ठीक है, तो वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर इज दैट क्वांटिटी हु हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन एज वेल एज डेफिनेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाउ वी एक्सप्रेस वेक्टर और पोजीशन ऑफ वेक्टर बाय जॉइनिंग दैट पॉइंट टू ओरिजिन एंड इंडिकेटिंग एरो ऑन इट फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, वी कॉल इट पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओबीक्यू। अब इसी की आपने वी कैन अप्लाई दिस लॉ ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओबीक्यू। क्या होगा भाई? आप देख रहे हो इसमें OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस माइनस OQ वेक्टर, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू। ठीक है, अब PQ के रहने के बाद को उधर ट्रांसफर कर देंगे, PQ वेक्टर विल बी इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OQ। ये एक फॉर्मूला मिल गया रिलेटिंग पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाले में से पहले वाले को डिफरेंस करना है। जैसे मैंने बोल दिया आपको MN वेक्टर फाइंड आउट करना, यू आर वेरी श्योर दैट इट विल बी ON माइनस ON। ठीक है, कहीं पर लो ऊपर तो एक जनरल रूल थंब रूल मिल गया आपको, दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर MN फाइंड आउट करना है आपको, तो MN विल बी इक्वल टू ON माइनस। ठीक है, ये एकदम स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन है वेक्टर का।
अब इसके वेक्टर के अपने को पता है, मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का बताया है, ठीक है। तो उस एक्सिस के हिसाब से आपको कुछ इंडिकेटर्स कह सकते हैं, वी कैन इंडिकेट अ पर्टिकुलर वेक्टर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन विद सम नोटेशंस। जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है उसको पहले समझते हैं। व्हेन वी से यूनिट वेक्टर, दैट मींस इट हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1। If magnitude is 1 and direction is definite, then we call it unit vector. ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर का मतलब उसकी लेंथ 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, जो भी आपने यूनिट दिया है वो। ठीक। अब एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करना है इसी वेक्टर को एक कंपोनेंट फॉर्म। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बिल्कुल न्यू है। यू विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कंप्लीट। आपको पता होना चाहिए कि 3 डायरेक्शन आप लेते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन द यूनिट वेक्टर, ये जैसे आप बोल रहे हैं, इंडिकेटेड बाय आई, आई बराबर है कैप। ठीक है, ये कैप कहलाता है, इट मींस कैप टोपी। ठीक है, ऊपर यदि ऐसा कैप लगा दिए तो इसका मतलब है किसी वेक्टर, कोई भी एक के ऊपर कैप लगा दिया, ये वेक्टर हो गया ये वेक्टर, लेकिन मैंने एक के ऊपर कैप लगा दिया तो इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो आई कैप लगाया है, दैट मींस इट इज यूनिट वेक्टर बट अलोंग एक्स डायरेक्शन। आई जो है इट इंडिकेट्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, वी कॉल इट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स। ठीक है, ये आई है। जे क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो आएगा इसकी वैल्यू लगेगी। ठीक है, देन ये क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये आई जे की हो जाएगा। आई it is unit vector along x direction, j cap, it is unit vector along y direction, k cap, it is unit vector along z direction। अब ये मैंने आपको बोला कि 3i ये एक वेक्टर की वैल्यू है, ये वेक्टर, you are very sure that its magnitude is 3 and direction is along plus x। i क्या शो करता है? along x axis। ठीक है, तो आप हिंदी का साथ होगा, मैंने बोल दिया -4j b वेक्टर is equal to that it is along minus j direction, minus y direction and magnitude is 4। ठीक है, तो आप उसको एक्सप्रेस करोगे। ठीक, अभी मैंने बोल दिया कि एक और वेक्टर है which is 3i plus 4j, अब वेक्टर x। ठीक है, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे? मैं एक छोटा सा डायग्राम साइड बता रहा हूँ, इसको मिटा नहीं रहा हूँ कि आप लोगों को सबको अभी एक फोटोग्राफ मिल जाएगा। When we say 3i plus 4j, इसका मतलब क्या है? 3 1 2 3, यहाँ पर 3 तक आएगा, 3 है। When we say plus 4j, तो 1 2 3 4 इक्वल 4। ठीक, आप इस तरीके से दोनों को ज्वाइन करेंगे और ये वेक्टर बना देंगे। ठीक है, ये वेक्टर जो होगा ये r वेक्टर होगा, जो इसको यहाँ पर या x r वेक्टर। अब ये कैसे हुआ? ये 3i वेक्टर है O से B तक, ये O से B तक कितना 4j वेक्टर है, बट वी नो दैट दिस इज पैरेलल टू दिस वन। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4j है, इट्स वैल्यू आल्सो। अब लॉग ट्रायंगल लगाएंगे अपन, लॉग ट्रायंगल से क्या हो जाएगा? O इसको मैं नाम देना, OM वेक्टर will be equal to OA plus AM। सर डायरेक्ट OA plus AM सेम डायरेक्शन में है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सीधा सीधा अपन डायरेक्शन में जितने वेक्टर्स होते हैं उनका सब अपोजिट डायरेक्शन में जितने होते हैं उनके सब इक्वल रहते हैं, दे मोर देन 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा OA plus AM is equal to अब OA is 3i and AM is OM r वेक्टर। सीधी बात है, ये जो वेक्टर शो कर रहे हैं वो क्या है?
तो नाउ इट इज वेरी इजी टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब एक स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने एक्सप्रेस कर लिया किसी पर्टिकुलर वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड इज लाइन ओ एम मॉड, मैग्नीट्यूड इज इंडिकेटेड बाय दिस आर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर, ये होगा इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, मैग्नीट्यूड आपको पता है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम प्लस ए एम स्क्वायर mod square and its root that will be equal to 2m using Pythagoras या मॉडुलस के लिए आप स्क्वायर करके तो नहीं मॉड का ही लेंगे अपन, सीधे आई का स्क्वायर नहीं लेंगे। क्या ऐसा नहीं लिखेंगे 4i स्क्वायर, 4 स्क्वायर या 3 स्क्वायर, जैसे 3i का 3 स्क्वायर, उसकी मॉडुलस वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि आप आई जे की आई को यूनिट वेक्टर है, उसकी मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके साथ जो मल्टीपल है उसको जब लेंगे, और वही चीज समझा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आपने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, मैं इधर थोड़ा सा एग्जांपल और लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक आई एक्स वन है सपोज, और ये जो है ये जे वाई वन, तो उस कंडीशन में आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ ए बी एम, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आई एक्स वन प्लस जे, अभी ऐसे किया तो इसकी मॉडल कितनी जाएगी, आर मॉडल की अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस, याद रखो इसे, ठीक है। तो कोफिशिएंट जितने भी रहेंगे आई जे और के भी होगा, तो उसमें उसका भी कोफिशिएंट दैट स्क्वायर है। तो मॉडल से निकालना है, जो कोफिशिएंट दिए उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और रूट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वेक्टर की is 2i plus 3j and vector b is equal to j plus 3j. Find modulus of a and b. ठीक, तो mod of a कितना हो जाएगा, mod of a will be under root of 2 square plus 3 square, that is root 30. ठीक, इसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी जाएगी, 1 square plus 3 square, that is root 10. एक परिधि मैंने पूछ लिया a plus b, इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालो, a प्लस बी और a माइनस बी निकाला होगा, तो i वाले के साथ i वाला कोएफिशिएंट ऐड होगा, j के साथ j होगा, k के साथ k होगा, जैसे अभी सी a प्लस बी फाइंड आउट करना a प्लस, तो 2i यहाँ तो i है ही, तो ओनली 2i will be there, then 3j plus j it will become, यहाँ a नहीं है, ओनली 3j यहाँ है, ठीक है। और इसकी मॉड में कितनी जाएगी, मॉड a प्लस बी इक्वल्स 1 रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 29। ये बिल्कुल भी सीधे सीधे सब इक्वल नहीं है, और इसलिए हमने शुरू में बताया था 2 + 2 4 नहीं होता वेक्टर, ठीक है, और वो इसी तो ये हो जाएगा आई जे, आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, j इज यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन, k इज अलोंग z डायरेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसका 2-3 न्यूमेरिकल लेता हूँ जिससे अपन सम और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, इसका प्रोग्राम जो सम और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कॉपी निकाल लें आप लोग सभी अपने अपने, वेक्टर a इज गिवन एज i प्लस pj प्लस 4, वेक्टर b इज गिवन एज -2i प्लस pj प्लस 4। तो फाइंड a प्लस 2b, mod means magnitude and 2a minus b, ठीक है। दोनों ही आपको बताएंगे। जब भी मैं बोलता हूँ 2b मैंने ट्वाइस ऑफ b, मैंने b के हर कंपोनेंट के साथ में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ट्वाइस ऑफ b विल बी -4i प्लस 6j प्लस 2, और फिर उसको सॉल्व करना है। होपफुली आप सब समझ होंगे और फटाफट सॉल्व करके मुझे दिखा देंगे। नाउ टाइम स्टार्ट्स, we start doing this. pj plus 4k फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप, थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करें, प्लस 2 of b, b means -2i plus 3j plus 2, now I minus 4i, that will be minus
3j plus 6j, that is 9, 4k plus 4k, that is 8. ये हो गया इस वेक्टर का। तो इसकी मॉड निकालेंगे तो आपको वहीं पर गड़बड़ किया गया। -3² इज +9, -9 ही होता है, शायद यहीं पर गड़बड़ हुई है कि दोनों आंसर गलत आया। 9² is 81 and 80² is 64. That will be 3² 9 plus 81 plus 64, that is under root of 1/5. ठीक है, तो गलतियाँ पकड़ में आ गई ना? ठीक है, यश का गणपति को बाद में आ गया, मालूम रूप से कभी आया है। ठीक है, सेकेंड वाला फटाफट रेस्ट ना करें। 2a minus b mod है यानी 2 आ गया, तो √4 और 2 आ रहा है एक आंसर। बाकी लोगों का क्या आ रहा है देखना पड़ेगा। एंड 8k and -2k that is 6. ठीक है, it will be under root of 16 plus 9 plus 36, under root of 61। सही होगा। तो √61 यश बघेल का आया हुआ है और ध्रुव कटिया का भी आया है। ठीक, तो जो है उसको क्रॉस एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, पॉलीगॉन रूल जो है क्या बोलता है, ये किसी टाइप का पॉलीगॉन हो सकता है। ठीक, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसकी डायरेक्शन आपको दे दिया है डी, इसकी डायरेक्शन दे दिया एफ और ये इस डायरेक्शन में यस। ठीक है, तो इनका सब कितना होगा क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपने रेगुलर पॉलीगॉन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, तो उस कंडीशन में सेम डायरेक्शन में वेक्टर रोटेशन की डायरेक्शन में क्या करना है, सेम डायरेक्शन में है एक के एरो से दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर इसके एरो से कोई दूसरा स्टार्ट होता है, सब कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में, बट ये अपोजिट में हो गया। ठीक है, अब ये अपोजिट में हो गया, इसकी डायरेक्शन में ये हो गया, लेकिन ये फिर अपोजिट हो गया, मतलब इसकी डायरेक्शन सेम हो गई। तो आप देख रहे हैं a प्लस b प्लस c तो सीधा है, लेकिन d में क्या लिखोगे -c, फिर ये f में भी क्या लिखोगे -f, लेकिन g में एक ही डायरेक्शन है, इसलिए प्लस। अब अपन एक इस तरीके से लिख ऐसा लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस g इज इक्वल टू d प्लस s। ठीक है, all those vectors which are in same direction their sum is equal to all those vectors which are in opposite direction। ठीक है, तो इससे सम भी बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली तो क्या है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज 0। ठीक है, if we indicate n number of vectors by a polygon of n sides continuously, then their vector sum is equal to 0। ठीक है, ये पॉलीगॉन है, तो ये पॉलीगॉन को आप लोग इसको भी बनाकर लिख सकते हो, याद रख सकते हो इसको, मैंने एग्जांपल दिया उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने वेक्टर देखा, वेक्टर में 4 चीजें। नंबर 1, we found that vector has a definite magnitude as well as direction। Number 2, we found that if 3 vectors are indicated by 3 sides of a triangle, then their vector sum is 0, law of triangle। Then we found that position vector is actually a vector which is obtained by joining that point to origin and indicating arrow from origin to that point। That is called position vector of A or B or C, OA, OB, OC। That displacement vector is actually vector between 2 points other than origin। PQ vector is displacement vector between P and AB vector is displacement vector between A and B। ठीक है, फिर हमने देखा कि how we express them with the help of I, J and K। I is unit vector along x direction, J along y direction and K along z direction। ठीक है, then we also found how we express 2i plus 3j, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, then sum and difference of two vectors कैसे फाइंड करते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें आज बताई गई हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ क्वेश्चन होंगे 10-12, तो उनको आप लोगों को अभी क्लासरूम में दे दूँगा या फिर व्हाट्सएप पर, तो आप उनको सॉल्व करके रखेंगे, क्योंकि मंडे को हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो डॉट प्रोडक्ट भी होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो थोड़ा सा अलग है। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे मंडे। ओके।
कल संडे, कल ऑफ रहेगा। सी यू ऑन मंडे, बाय।